What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 12th of March and today was Sensex weekly expiry. Yesterday, the markets closed almost near the day's low, which increased the probability of a gap down opening, and we did open a gap down, and Nifty especially gap down below the local minima. 23,700 एक local minima जैसे act कर रहा था. When the markets hit 23,700, the VIX had shot up to 25 and from there the markets did bounce back almost 600-700 points का एक pullback दिया. We even closed about 24,000 levels firmly, but today we gapped down below 23,700 levels, and currently the markets are closing somewhere around 23,650 levels. And as the markets opened today, there was an insane overnight crush. कल का जो सेंसेक्स ट्रैडल जो 900 रुपीस पे क्लोज हुआ था, वो आज ओपन होते ही खुला 520 के आसपास. ऑलमोस्ट 50% ऑफ ओवरनाइट क्रश. काफी महीनों से, इनफैक्ट काफी सालों से ऐसे ओवरनाइट क्रश देखने को नहीं मिला था. बट ऑफ कोर्स, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द रिस्क इज ओवरनाइट, you cannot price 500 rupees straddles when the VIX itself is at 21. So definitely as the markets opened and within the first 5-10 minutes the straddle spiked back up to 600 levels, and even the up move was spiking the calls without any decay in the puts. After some point the markets started giving some sort of a rally and there was a huge amount of gamma on the calls, and the markets finally took the resistance around yesterday's close, and wahan se again the markets fell almost 600-700 points. With straddles just trading at 500 in the morning, the markets made a total swing of more than 2,000 points. And towards the end of the day, it was some sort of a pattern over the last few expiries that the market used to shoot up significantly after 230. But today, it was the opposite. The markets took the resistance and the markets actually tanked almost 400 points after 230. And even post 3 o'clock, the 76,000 straddle dilly-dallied and the calls tripled, the puts tripled, and at one point the puts which were trading almost hyper OTMs, they almost 10x'd. So this kind of volatility is some sort of a given, and during the market hours there were a lot of news. Some were true, some were not true, and the markets were giving small knee-jerk reactions. एक जो 5 मिनट में जो candles बनते थे, they were definitely some sort of a reaction to whatever the news that's floating around. So tomorrow is again Friday, and the markets are anxious going into the weekend. So let's get to the terminal and let's see क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हम स्पॉट कर सकते हैं. ऑल राइट, डेली चार्ट पे मार्केट्स ने जो लोकल मिनिमा जो हम डिस्कस कर रहे थे, उस लोकल मिनिमा को क्लियरली ब्रेक डाउन कर दिया है. 23,700 was supposed to be acting as some sort of a minima, because जब मार्केट्स 23,700 पे सपोर्ट लिया एंड वहाँ से काफ़ी अच्छा डिमांड आया, वहाँ से मार्केट्स ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट्स का एक सम सॉर्ट ऑफ अ डेड कैट बाउंस काइंड ऑफ अ पुल बैक दिया था. एंड ड्यूरिंग दिस बाउंस द विक्स ऑल्सो क्रश्ड फ्रॉम 25 to 18 लेवल्स. बट आज मार्केट्स ने उस लो को भी तोड़ा है एंड उसके नीचे एक डिसाइसिव डेली क्लोज दे दिया है. तो अगर हम लोग थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं तो कैन नोटिस दैट लास्ट 2 साल से इंडियन मार्केट्स हैव गिवन जीरो रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स, एंड डॉलर टर्म्स में बात करें तो नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, बिकॉज इन दिस 2 years द इंडियन रुपी हैज डिप्रिशिएटेड बाय मोर देन 12-15%. सो अगर मार्केट्स गोइंग इनटू द वीकेंड अगर कल भी थोड़ा बहुत नेगेटिव क्लोज दे देता है तो देन द सिनेरियो विल बी लुकिंग वेरी ग्रिम फॉर द बुल्स, बिकॉज 20 मार्केट्स वीकेंड के पहले जाने से पहले थोड़ा एक पॉजिटिव क्लोज देना चाहिए. मार्केट्स को 23,800 23,900 के आसपास एक ग्रीन कैंडल क्लोज देना चाहिए. अगर मार्केट्स गलती से 23,500 के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो देन एक्सपेक्ट सम मोर ब्लड बाथ इन द कमिंग वीक्स. अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बात करें, यू कैन नोटिस दैट yesterday the markets closed almost near their days low. We saw some sort of a clean down trending day, and जब मार्केट डेज लो के आसपास क्लोज देता है तो द गैप डाउन ओपनिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है, एंड टुडे डेफिनेटली वी ओपन विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ गैप डाउन. कल मार्केट्स 23,850 के आसपास क्लोज दिया था एंड मार्केट्स आज 23,660 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का एक गैप डाउन देखने को मिला, एंड सेंसेक्स वाज आल्सो शोइंग अ गैप डाउन ऑफ ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स. बट इन स्पाइट ऑफ 600 पॉइंट्स ऑफ गैप डाउन, द प्रीमियम्स फॉर द पोजिशनल रिस्क वर सो हाई दैट इवन द straddle traders who would have taken short straddles overnight, they wouldn't have made any losses because of how much overnight crush they got. 900 रुपीस का जो सेंसेक्स straddle था वो आज ओपन हुआ 500 रुपीस पे, मतलब 400 पॉइंट्स का क्लीन ओवरनाइट क्रश देखने को मिला. सो दिस मस्ट हैव कॉम्पेंसेटेड फॉर व्हाटएवर द गैप डाउन द मार्केट्स वर शोइंग. ठीक है, थ्रू आउट द डे ऑफ कोर्स देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ रिकवरी, एंड बाय द एंड ऑफ द डे देयर वाज अ शार्प फॉल. सो दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड ओवर द लास्ट 3 or 4 एक्सपायरीज वेयर मार्केट्स 2 o'clock के बाद एक शार्प अप स्पाइक देखने को दिखा रहा था. बट टुडे द मार्केट्स फाउंड रेजिस्टेंस हियर एंड द मार्केट्स डिड द ऑपोजिट वेयर देयर वाज अ शार्प सेल ऑफ. एंड इफ यू नोटिस द मार्केट्स आर क्लोजिंग
around the day's low here and this is not a good closing. अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है एंड 23,500 के नीचे अगर एक वीकेंड के जाने से पहले क्लोज दे देता है तो देन एक्सपेक्ट विक्स ऑल्सो टू स्पाइक अप बिकॉज विक्स ऑलरेडी वापस 18 से 21.5 तक ऑलमोस्ट आ चुका है. आज भी विक्स वॉज क्लोजिंग इन ग्रीन एंड देयर वॉज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल स्पाइक इन ऑल द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. सो अगर स्ट्रैडल की बात करें यू कैन नोटिस दैट ये सेंसेक्स पे काफ़ी ज़्यादा एक ओवरनाइट क्रश देखने को मिला बिकॉज सेंसेक्स का जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आज ही खत्म होने वाले थे बिकॉज देयर वाज नो फर्दर ओवरनाइट रिस्क ऑन सेंसेक्स का स्ट्रैडल. बट व्हेन इट कम्स टू द निफ्टी स्ट्रैडल यू कैन नोटिस दैट कल का जो स्ट्रैडल जो क्लोज हुआ था 500 के आसपास क्लोज हुआ था एंड इनफैक्ट टुडे इट वेंट अप टिल 600 एंड ओवर द डे थोड़ा बहुत स्पाइक थोड़ा बहुत स्पाइक जो है वो कूल ऑफ हुआ है. बट इफ़ यू नोटिस कल जहाँ पे स्ट्रैडल क्लोज हुआ था आज भी स्ट्रैडल वहीं पे क्लोज हुआ है विथ ऑलमोस्ट अ 250 पॉइंट ऑफ डेल्टा मूव फ्रॉम वेयर द मार्केट्स क्लोज्ड यस्टरडे. सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4-5 दिन का एक ओवरनाइट रिस्क यहाँ पे खड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ विच दी स्ट्रैडल प्रीमियम्स विल नॉट गो ईजिली. तो अगर कल मार्केट्स फ्लैट भी खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप भी खुलता है तो आई डोंट सी एनी रीजन फॉर दी स्ट्रैडल्स टू बी ट्रेडिंग बिलो 450 गोइंग इनटू द वीकेंड. अगर मार्केट 450 के नीचे स्ट्रैडल को प्राइस इन कर रहा है इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो मार्केट्स में आया होगा एंड एट द सेम टाइम द मार्केट्स वुड बी ट्रेडिंग अराउंड 24,000 लेवल्स. तो अगर 24,000 के ऊपर अगर मार्केट्स को क्लोज देना है देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ कूल ऑफ इन दिस स्ट्रैडल्स. वरना आई एम एक्सपेक्टिंग 450 और समथिंग अबव टू गो इन टू द वीकेंड बिकॉज 200 रुपीज़ का जो स्ट्रैडल है मिनिमम हमको मिलना चाहिए ऑन ट्यूसडे व्हेन वी ओपन ऑन द एक्सपायरी डे. तो मंडे विल गेट समवेयर अराउंड 350 का स्ट्रैडल. सो मोस्ट प्रोबेबली वी शुड एटलीस्ट गिव सम सॉर्ट ऑफ 150 पॉइंट ऑफ वीकेंड का जो रिस्क है वो प्राइस इन करना पड़ेगा. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द स्ट्रैडल्स टू क्लोज बिलो 450 गोइंग इन टू द वीकेंड. सो ऑब्वियस की बात है तो कल के लिए डेल्टा न्यूट्रल एंड शॉर्ट वॉल ट्रेड्स है that's a big no. हमको सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स लेना चाहिए. तो एज आई बीन सेइंग ओवर द लास्ट फ्यू सेशंस दिस इज अ सेल ऑन राइज मार्केट. तो बेसिकली हमको सिर्फ बेरिश ट्रेड्स को ढूंढना पड़ेगा. अगर बुलिश ट्रेड्स में हमारा स्टॉप लॉस जाता है तो डेफिनेटली हमको स्टॉप लॉस दे के वी शुड ऑलवेज वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ बेरिश ट्रेड्स. ठीक है. तो बेरिश ट्रेड्स में हम लोगों को क्या करना है इधर रेजिस्टेंस पे हम लोगों को सेल करना है या सपोर्ट ब्रीच होने पर हम लोगों को सेल करना है. तो अभी मेरे को रेजिस्टेंस क्या नजर आ रहा है यहाँ पे ये नजर आ रहा है समवेयर अराउंड 23,800 लेवल एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 24,000 लेवल. यहाँ पे आप देख सकते हैं during yesterday's market there was a lot of hands, there was a lot of volumes that got exchanged around 24,000 levels and ये जो लेवल है यहाँ पे काफी ज्यादा एक वॉल्यूम भी ज़्यादातर वॉल्यूम हैंड्स एक्सचेंज हो चुका है. तो समवेयर बिटवीन 23,950 एंड 24,000 लेवल है वो सेकंड रेजिस्टेंस बन जाएगा एंड आज का जो हाई है विच इज 23,850 लेवल दिस विल ऑल्सो एक्ट एज सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस. ऑब्वियस की बात है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इंट्राडे में अगर 150 पॉइंट से ज़्यादा अगर ट्रैवल करता है तो देन इनिशिएट सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट ट्रेड अराउंड दिस रेजिस्टेंस लेवल. वेट फॉर अ पैटर्न ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम. 1 मिनट पे ए डबल टॉप या एनगल्फिंग काइंड ऑफ अ कैंडल बनता है तो आपका थोड़ा स्टॉप लॉस और भी कम हो जाएगा. आप 1:3 1:4 काइंड ऑफ ट्रेड्स को भी हम लोग पकड़ने के लिए ट्राई कर सकते हैं. अगर आप 5 मिनट्स के या उसके ऊपर वाला जो चार्ट्स ट्रेड करता है तो देन डेफिनेटली आपको ट्रेड्स मिलने वाला है, कंफर्मेशन भी मिलने वाला है. बट इट्स वेरी हार्ड टू गेट एनीथिंग मोर देन 1:2 काइंड ऑफ ट्रेड्स स्पेशली ऑन एन इंट्राडे बेसिस. तो अगर सपोर्ट ब्रीच होता है तो डेफिनेटली हमको ब्रेकडाउन को ट्रेड करना पड़ेगा. बट यहां पे दो सिनेरियो खड़ा होता है. तो अगर इस सपोर्ट 930 के पहले या 945 के पहले फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के थ्रू अगर ब्रेकडाउन हो जाता है देन गो इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट्स. हम लोग एक्चुअली शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ब्रेकडाउन पे ही विद द हाई ऑफ द फर्स्ट ओपनिंग कैंडल एज सम सॉर्ट ऑफ अ स्टॉप लॉस. बट अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुल के एंड इंट्राडे में मार्केट ट्रैवल करके यहां पे आता है यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यहां पे मार्केट थोड़ा बाउंस करेगा एंड उसके बाद ट्रैप करके नीचे जाएगा. सो दैट इज वाई यहां पे हम लोग ब्रेकडाउन को ट्रेड नहीं करेंगे बट रैदर ब्रेकडाउन होने के बाद जो रीटेस्ट आता है इस लेवल पे इस जोन पे रीटेस्ट को हम लोग वेट करेंगे एंड रीटेस्ट पे हम लोग ट्रेड लेंगे. सो ब्रेकडाउन को हम लोग सिर्फ तब ट्रेड करेंगे 945 के पहले अगर ये लो ब्रीच हो जाता है. तो अगर मार्केट इंट्राडे में ट्रैवल करके इस सपोर्ट को तोड़ता है तो लेट द ब्रेकडाउन हैपन. एक क्लियर कट ब्रेकडाउन होने दो एंड उसके बाद मार्केट्स को रीटेस्ट करने दो एंड उसके बाद हम लोगों को बेरिश ट्रेड्स ओपन करेंगे.
ठीक है, अगर मार्केट एक बड़ा गैप डाउन से खुल जाता है, लेट्स से लाइक ऑफ कोर्स द मार्केट्स आर नॉट प्राइसिंग सच बिग गैप डाउन फॉर टुमारो, बट अगर कुछ न्यूज़ आ जाता है, ट्रम्प का मतलब दिमाग फिर से खराब हो गया, कुछ और कुछ ट्वीट कर दिया एंड द मार्केट्स गैप डाउन बिलो 23,500 लेवल्स, देन लेट द डे गो. इट्स गोना बी अ नो ट्रेडिंग डे फॉर मी पर्सनली एंड आई एडवाइज यू गाइज ऑल्सो टू हैव दिस नो ट्रेडिंग डे टुमारो, बिकॉज जनरली बड़ा गैप डाउन के बाद या बड़ा गैप अप के बाद मैं कहता हूँ कि लाइक इनिशियल बैलेंस को देखो, फर्स्ट 45 मिनट्स का कैंडल एंड उसके बाद उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या उसका रेंज ट्रेड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट डे ऑफ द एक्सपायरी इट इज. अगर एक्सपायरी है तो इसका रेंज ट्रेड कर सकते हैं, अगर नॉन एक्सपायरी डे है तो इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. बट टुमारो बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जाने वाला है. अगर बड़ा गैप डाउन होके अगर मार्केट इधर तक ट्रैवल करेगा, देन यू कैन इनिशिएट द bearish trade when the pullback happens at this level. But of course pullback के लिए हम लोगों को पैटर्न के वेट करने की जरूरत नहीं है. अगर मार्केट्स 200 प्लस पॉइंट्स अगर मार्केट एक अपमूव देगा, मान लो कि 23,500 के आसपास मार्केट खुला एंड मार्केट्स 23,600 के आसपास, 650 के आसपास ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट्स का एक वन वे रैली दिखाया, देन दैट बिकम्स अ गुड प्लेस वेयर ऑल दीज लॉन्ग्स whoever initiated the longs right at the markets open would be finding this a suitable place to actually dump their positions, and also the initiative shorts will also start building their positions. So यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनने वाला है शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक बड़ा गैप अप खुलता है तो देन वेट फॉर द रेजिस्टेंस. जो पहला मेरा रेजिस्टेंस है 23,850 के आसपास मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस है एंड द सेकंड रेजिस्टेंस इज 24,000 लेवल्स. तो यहाँ पे समवेयर अराउंड 60 to 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग 1:2 1:3 का ट्रेड्स हम ले सकते हैं. बट अगेन सिंस इट इज एन नॉन एक्सपायरी डे, स्पेशली ऑन अ फ्राइडे गोइंग इनटू द वीकेंड विद सो मच ऑफ chaos around us, don't expect some sort of a premium crush. In fact, आपका डायरेक्शन सही होने के बावजूद भी आपका जो at the money या OTM अगर आप शॉर्ट करते हैं तो expect them to actually spike because Q साथ ज़्यादातर बढ़ जाता है. ठीक है, I hope you guys had a decent expiry. Let me know in the comments आपका expiry कैसा रहा. Personally speaking, for me, I made around 0.4% in today's expiry, and I'll see you guys after tomorrow's market action. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.